Good morning, dear students. Today I am going to teach you the first explanation of the lesson A Girl with a Basket. Our passage starts from They were poor people up to they fell. Let us read the passage first. They were poor people to start with. वे लोग जब रवाना हुए तो गरीब थे. They were poorer as they began their long trek. जैसे जैसे वे अपने लंबे रास्ते पर लंबी यात्रा पर आगे बढ़ते चले गए वे और अधिक गरीब होते चले गए. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. क्योंकि अपने साथ वो जो कुछ भी ला सकते थे उसमें थोड़ा सा भोजन और कुछ अन्य सामान शामिल थे. Soon they were out of food. शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया. A few days after they started, अपनी यात्रा पर रवाना होने के कुछ दिनों के पश्चात they began to fall by the wayside from the weakness of hunger. वे सभी भूख की कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरने लगे and died where they fell. और जहाँ पर वे गिरे वहीं पर मर गए. Dear students, we see in this passage the writer is telling us about the condition of the refugees, of the people who decided to come to India from Pakistan at the time of partition. So as we say, when they started they were poor and they became poorer when they started on their long journey because they could carry with them only a little food and a few belongings and they had to leave everything in Pakistan. Soon they were out of food. जल्दी उनका भोजन भी समाप्त हो गया. So most of them fell down by the wayside from the weakness of hunger and most of them died where they fell. Now let us going to do the explanation. First of all, reference. As we all know that in this portion we write the name of the lesson and the name of the writer. Reference. These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas. ये पंक्तियाँ विलियम सी डगलस द्वारा लिखित पाठ A Girl with a Basket से ली गई हैं. We have to be careful here. There should be no mistake in the spelling of the title of the lesson and in the spelling of the writer of this lesson. Context. This is the portion where we give a hint about which we are going to explain. In these lines, the writer tells us about the miserable condition of the refugees who came to India from Pakistan at the time of partition. इन पंक्तियों में लेखक हमें शरणार्थी लोगों की दयनीय दशा के बारे में बताता है जो शरणार्थी विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे. In these lines, the writer tells us about the miserable condition of the refugees who came to India from Pakistan at the time of partition. इन पंक्तियों में लेखक हमें उन शरणार्थियों की दयनीय दशा के बारे में बताता है जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे. Now we are going to do the explanation portion. The writer said that India was divided in 1950. लेखक कहता है कि भारत 1950 में विभाजित हो गया. Then Pakistan came into existence. तब पाकिस्तान अस्तित्व में आया. Existence means अस्तित्व. At that time, a large number of people decided to go to India. उस समय बहुत सारे लोगों ने जो हिंदू थे उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे भारत जाएंगे. Their journey was very long and full of difficulties. उनकी यात्रा बहुत लंबी थी और कष्टों से भरी हुई थी. When they started on their journey, जब वे अपनी यात्रा पर रवाना हुए, they were poor. वे लोग गरीब थे. इसलिए गरीब थे क्योंकि उनको अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ना पड़ा और अचानक ही वहाँ से भागना पड़ा. They became poorer when they moved on their long journey. और जैसे जैसे वो अपनी लंबी यात्रा पर आगे बढ़ते चले गए वे और अधिक गरीब होते चले गए. Soon their food and money was finished. जल्दी ही उनका भोजन और उनका जो पैसा था वो भी समाप्त हो गया. All of them could not reach India. जितने लोग पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना हुए थे उनमें से सारे लोग भारत नहीं पहुंच पाए. Some of them fell down by the roadside due to weakness of hunger.
उनमें से कुछ लोग रास्ते में भूख की कमजोरी के कारण गिरने लगे एंड डाइड देयर, और जो जहाँ पर गिरा वहीं पर मर गया। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन of the lesson A Girl with a Basket, in which we have described about the condition of those refugees who decided to go to India from Pakistan at the time of partition. So whenever we do an explanation, there are three portions. First, reference, in which we describe about the title of the lesson and about the writer of the lesson. In context portion, we give a hint in little words, in few words what we are going to describe, and in the explanation portion we are totally free to describe about what we want to describe. तो इस पैसेज में हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में लेखक ने बताया है उन शरणार्थी लोगों की दशा के बारे में जो भारत आना चाहते थे विभाजन के समय पाकिस्तान से, और एक्सप्लेनेशन पोर्शन में बताया लेखक ने कि भारत 1950 में विभाजित हुआ, तब पाकिस्तान अस्तित्व में आया। उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भारत जाने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा लंबी थी और कष्टों से भरी थी। जब वे अपनी लंबी यात्रा पर रवाना हुए, वे सभी गरीब थे, और जैसे जैसे वो अपनी लंबी यात्रा पर आगे बढ़ते चले गए और अधिक गरीब होते चले गए। जल्दी उनका पैसा और उनका भोजन था वो भी समाप्त हो गया। उनमें से सभी लोग भारत नहीं पहुंच पाए। उनमें से कुछ लोग भूख की कमजोरी के कारण सड़क किनारे गिरने लगे, और जो जहाँ पर गिरा वहीं पर मर गया। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेकेंड explanation of the lesson A Girl with a Basket. Our explanation passage start, the most diligent up to any heart. The most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. लेखक कहता है बहुत सारे बच्चे टोकरियां और पंखे बेच रहे थे, और उनमें सबसे अधिक परिश्रमी, सबसे अधिक आक्रामक विक्रेता जो थी वो एक 9 वर्ष की छोटी सी लड़की थी जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। She had a lovely basket with handle. उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी जिसमें एक हत्था भी लगा हुआ था। And she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. और वह इस टोकरी को बेचने के लिए 1.5 रुपया या लगभग 30 सेंट्स चाह रही थी। She was an earnest pleader. वह बड़ी ईमानदारी से अपनी वस्तु की प्रशंसा कर रही थी। There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would wring any heart. उसने ऐसी आवाज में लेखक से प्रार्थना की, याचना की कि लेखक का हृदय पिघल गया। So dear students, as we read this passage, we see that here the writer is telling us about the vendor who attracted him the most. Now let us go for explanation. The most diligent up to heart, reference same, reference एक लेसन में सेम ही रहता है। Now we are going to describe context. Context means आप जानते हैं प्रसंग। In these lines the writer tells us about the vendor who attracted him the most. इन पंक्तियों में लेखक हमें उस विक्रेता के बारे में बताता है जिसने उसको सबसे अधिक आकर्षित किया। इन पंक्तियों में लेखक हमें उस विक्रेता के बारे में बताता है जिसने उसको सबसे अधिक आकर्षित किया। एक्सप्लेनेशन, द राइटर सेज दैट देयर वाज अ क्राउड ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन। लेखक कहता है कि जिस स्टेशन पर वो अपने रेलगाड़ी के डिब्बे से उतरा वहां पर शरणार्थी बच्चों का एक बड़ा झुंड था, एक बड़ा समूह था। हु वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस, और वे शरणार्थी बच्चे टोकरियां और पंखे बेच रहे थे। बट द राइटर वॉज अट्रैक्टेड मोस्ट बाय अ स्मॉल गर्ल ऑफ 9 years। लेकिन लेखक जिससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ वह थी 9 वर्ष की एक छोटी सी लड़की। सी वॉज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, वह ठीक लेखक के सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी। इट हैड अ हैंडल ऑल्सो, इसमें एक हत्था भी लगा हुआ था। सी वॉन्टेड टू सेल हर बास्केट टू द राइटर फॉर 1.5 रुपी, और वो अपनी टोकरी लेखक को लगभग 1.5 रुपए में बेचना चाहती थी। सी वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में
आंसू थे। शी वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द कस्टमर, उसको इस बात का भय था कि कहीं वो अपना ग्राहक ना खो दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी टोकरी लेखक को ना बेच सके। सो शी रिक्वेस्टेड द राइटर इन सच अ वॉइस, इसलिए उसने लेखक से ऐसी आवाज में प्रार्थना की, एज मेल्टेड द राइटर्स हार्ट, कि लेखक का हृदय पिघल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस explanation we have described about the vendor who attracted the writer most. The writer has described about her in this explanation portion that लेखक कहता है कि वहाँ पर स्टेशन पर बहुत सारे शरणार्थी बच्चों का एक झुंड था जो उसको जो टोकरियाँ और पंखे बेच रहे थे, लेकिन लेखक सबसे ज़्यादा एक 9 वर्ष की छोटी लड़की से प्रभावित हुआ। वो लेखक के ठीक सामने खड़ी थी, उसके पास एक टोकरी थी, उसमें एक हत्था भी लगा हुआ था। वो अपनी टोकरी लेखक को 1.5 रुपए में बेचना चाहती थी। वो बहुत गरीब थी, उसकी आंखों में आंसू थे, उसको इस बात का भय था कि कहीं वह अपना ग्राहक ना खो दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी टोकरी लेखक को ना बेच पाए। सो इसलिए उसने लेखक से ऐसी आवाज में विनती की कि लेखक का हृदय पिघल गया। ये स्टूडेंट, these are the two explanations which I described to you today. Please read the passage, then write these two explanations in your notebook and try to learn them. Have a nice day. Bye bye.